Good morning, students. Today we are going to start with a new unit, unit number 7, management of patient undergoing surgery. So, we will start with the unit. What is perioperative nursing? Perioperative nursing मतलब क्या है? ठीक है? The term refers to the total span of surgical intervention. टर्म का मीनिंग क्या है? पेरीऑपरेटिव नर्सिंग और पेरीऑपरेटिव फेज का मीनिंग क्या है? उसका डेफिनेशन है द टर्म refers to the total span of surgical intervention. ये टोटल स्पैन ऑफ सर्जिकल इंटरवेंशन मतलब क्या है? The total span of surgical intervention is nothing but it is the time when a physician takes a decision to do a surgery until the patient is transferred to the recovery room from the operating. मतलब क्या है? ये टोटल स्पैन ऑफ सर्जिकल इंटरवेंशन मतलब ये है जब एक सर्जन एक पेशेंट को सर्जरी करने के लिए डिसीजन लेते हैं, ठीक है, और वो टाइम से लेके हम जो भी केयर पेशेंट को देते हैं तब तक व्हेन द पेशेंट इज शिफ्टेड टू द रिकवरी रूम आफ्टर द सर्जरी. ठीक है, जब से सर्जरी के लिए डिसीजन लेते हैं तब से पेशेंट को सर्जरी के बाद रिकवरी रूम तक शिफ्ट करते हैं. और टाइम स्पैन को, टोटल टाइम स्पैन को हम क्या बोलते हैं? पेरी ऑपरेटिव फेज. ठीक है, एंड दिस पेरी ऑपरेटिव फेज वी आर डिवाइडेड इनटू 3 phases. First one is pre-operative phase, second one is intra-operative phase, and the third one is post-operative phase. So, in this unit, we are going to see in detail about these 3 phases, that is pre-operative, intra-operative and post-operative phase, and what are the roles and responsibilities of a nurse in these phases. We will start with the first phase, that is pre-operative phase. In the word itself, we can see what is the meaning of this pre-operative phase. What is pre-operative phase? एक phase का meaning क्या है, definition क्या है, और ये pre-operative phase वो word का मतलब क्या है? See, pre-operative phase begins with the decision to perform the surgery and continues until the client has reached the operating एरिया. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? प्री ऑपरेटिव फेज मतलब क्या है? जब से हम सर्जरी परफॉर्म करने के लिए डिसीजन लेते हैं, ठीक है, तब से पेशेंट को सर्जरी करने के लिए ऑपरेशन रूम तक शिफ्ट करते हैं. ठीक है, वो फेज को हम क्या बोलते हैं? प्री ऑपरेटिव फेज. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज. इन दिस फेज वी नीड टू डू सो मेनी थिंग्स. ठीक है, ये प्री ऑपरेटिव फेज में हमें बहुत सारा कुछ करने के लिए. ठीक है, so what are the roles and responsibilities of a nurse in a pre-operative phase? We will move on to the role of a nurse in the pre-operative phase. हमारा काम क्या है और हमारा responsibilities क्या क्या है? ठीक है, first one is pre-operative assessment. This is the first role of nurse. The second one is obtaining informed consent. Third one is pre-operative teaching. Fourth one is physical preparation of the client, and last but not the least is the psychological preparation of the patient. Okay, so these are the 5 points we need to remember in the roles and responsibilities of a nurse in the pre-operative phase. We will see one by one. What is प्री-ऑपरेटिव असेसमेंट? असेसमेंट का मतलब क्या है? नर्सिंग प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप क्या है? असेसमेंट. ठीक है, नर्सिंग प्रोसेस में हम लोग पहले क्या करते हैं? वी विल डू द असेसमेंट ऑफ द पेशेंट. असेसमेंट में हम लोग क्या क्या डेटा कलेक्ट करते हैं? वी विल कलेक्ट द सब्जेक्टिव डेटा एंड ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव डेटा. सेम हियर इन द प्री-ऑपरेटिव फेज ऑल्सो वी विल डू द असेसमेंट ऑफ द पेशेंट एंड वी विल कलेक्ट बोथ द सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा. ठीक है, so what are the subjective and objective data we will collect? First one is review of pre-operative laboratory and diagnostic studies. What are the laboratory and diagnostic studies we need to do before doing any surgery? जो भी सर्जरी हमें करना है उससे पहले हम क्या करते हैं? हमें बहुत सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट करना होगा. ठीक है, और लेबोरेटरी टेस्ट भी
करना होगा, ठीक है। उसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या होगा? फर्स्ट वन इज CBC, दैट इज कंप्लीट ब्लड काउंट. देन ब्लड ग्रुपिंग वी नीड टू डू बिकॉज मोस्ट ऑफ द सर्जरीज नीड ब्लड ट्रांसफ्यूशन एंड द क्रॉस मैचिंग ऑल्सो, ठीक है. सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, यूरिन एनालिसिस करते हैं, चेस्ट एक्सरे चाहे तो करते हैं, ठीक है. ECG देते हैं पेशेंट का, ठीक है. एंड अदर टेस्ट रिलेटेड टू प्रोसीजर और क्लाइंट्स मेडिकल कंडीशन, ठीक है. तो अगर कौन सा सर्जरी पेशेंट को करना है, ठीक है, वो सिस्टम के रिलेटेड सर्जन कितना भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करने के लिए बोलते हैं, वो सभी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस करवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? हम नर्सेस का, ठीक है. और पेशेंट का मेडिकल कंडीशन देके भी हम दूसरा भी प्रोसीजर और लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, ठीक है. द सेकंड वन वी विल डू इन द असेसमेंट इज रिव्यू ऑफ क्लाइंट्स हेल्थ हिस्ट्री. वी विल सी द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, वी विल कलेक्ट द, हम पेशेंट का हिस्ट्री भी कलेक्ट करते हैं, ठीक है. हिस्ट्री कलेक्शन सबको पता है कैसे कलेक्ट करना है. हिस्ट्री में हम लोग क्या क्या कलेक्ट करते हैं? पेशेंट का पूरा के पूरा बेसलाइन डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं, ठीक है. इसमें भी सेम है, ठीक है. उसके बाद हम पेशेंट का प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री क्या है, ठीक है. उसके बाद पेशेंट का पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्या है, ठीक है. और पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री कुछ है तो उसके बारे में हम लोग कलेक्ट करते हैं, ठीक है. सो वी विल सी वन बाय वन, ठीक है. फर्स्ट प्रेफरेंस इज फॉर प्रेजेंट इलनेस, ठीक है. किसके लिए पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है और व्हाट इज द रीजन फॉर द सर्जरी करने का रीजन क्या है, ठीक है. सेकंड वन इज पास्ट मेडिकल हिस्ट्री. ये पेशेंट को और कुछ डिसीज कंडीशन है जैसे आस्थमा है, डायबिटीज मेडिटिस है और प्रीवियस कुछ हॉस्पिटलाइजेशन, लॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन का हिस्ट्री है, वो सब हम लोग पूछना है, ठीक है. देन मेडिकल कंडीशंस एंड प्रीवियस हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ सर्जरीज, मतलब क्या है? इससे पहले, ये सर्जरी करने के पहले पेशेंट को कोई भी सर्जरी किया है तो उसके बारे में भी हम लोग कलेक्ट करना है, ठीक है. जब वो सर्जरी के बारे में पूछते हम लोग क्या क्या पूछना है पेशेंट को ऐसे पूछना है कौन सा सर्जरी किया है, ठीक है, और कब किया है, ठीक है. एंड जब वो सर्जरी किया था तब एनेस्थीसिया के बाद पेशेंट को कुछ नहीं तो एनेस्थीसिया के वजह से पेशेंट को कुछ कंप्लेंट्स और कॉम्प्लिकेशन हुआ है, ठीक है. तो ये सब पूछना है. एंड एलर्जीज, पेशेंट को कुछ एलर्जीज है, कोई मेडिकेशंस और कोई फूड ऐसे कुछ एलर्जीज है, ठीक है. और पेशेंट कुछ प्रेजेंट मेडिकेशंस ले रहे हैं, ठीक है. प्रेजेंटली इफ ही इज ऑन सम मेडिकेशंस लाइक डायबिटिक पेशेंट है तो वो मेडिकेशन लेते हैं, ठीक है. और हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो बीपी का मेडिसिन लेते हैं, ठीक है. आस्थमा, थायराइड ऐसे कुछ मेडिसिन पेशेंट रेगुलरली ले रहे हैं, उसका हिस्ट्री कलेक्ट करना है. देन सब्सटेंस यूज, व्हाट इज सब्सटेंस यूज? दैट इज नथिंग बट if the patient is using, whether the patient is using alcohol or any drug substance का use है. Then we need to see the review of the system, that is nothing but the physical examination. patient का physical examination, head to toe physical examination हमको करना है. उसके साथ हम क्या करते हैं, हम ये पेशेंट का जो भी सिस्टम में नहीं तो जो भी सर्जरी परफॉर्म करने वाले वो सिस्टम को हम स्पेसिफिकली असेसमेंट करते हैं, ठीक है. सो दिस इज द रिव्यू ऑफ क्लाइंट्स हेल्थ हिस्ट्री इंक्लूडिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन. देन वी नीड टू असेस द फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल नीड्स ऑफ द पेशेंट, ठीक है. सो व्हाट आर द फिजिकल नीड्स वी नीड टू सी? फर्स्ट वन इज एबिलिटी टू कम्युनिकेट, ठीक है. कम्युनिकेट करने का एबिलिटी पेशेंट को कैसे, ठीक है. देन वी नीड टू सी द vital signs that we are already doing in the physical examination. Then the level of consciousness of the patient. What is this level of consciousness? क्या देखना है? पेशेंट कंफ्यूज है, ठीक है, पूरा अनकॉन्शियस है, नहीं तो पेशेंट को ड्राउसीनेस है, ठीक है, ये सब देखना है. देन वी नीड टू चेक द हाइट एंड वेट ऑफ द पेशेंट. वी नीड टू सी वेदर द पेशेंट कैन एम्बुलेट, ठीक है, वेदर द पेशेंट को मूव कर सकते हैं, चल सकते हैं, ऐसे वो सब देखना है. देन वी नीड टू सी द लेवल ऑफ एक्सरसाइज ऑफ द पेशेंट को एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं. देन वी नीड टू सी द इम्पोर्टेंट थिंग इज द यूज ऑफ प्रोस्थेसिस. व्हाट इज प्रोस्थेसिस?
इफ द पेशेंट इज यूजिंग एनी आर्टिफिशियल ऑर्गन्स, ठीक है, दैट इज नथिंग बट प्रोस्थेसिस, ठीक है, उसके बारे में हम देखना है. देन द सर्कुलेटरी स्टेटस ऑफ द पेशेंट. दीज आर द थिंग्स वी विल सी इन द physical needs, or we will assess in the physical needs of the patient. Then coming to the psychological and cultural needs of the patient, ठीक है. किसी को भी हम सर्जरी के बारे में बोलो, कोई भी पेशेंट को हम सर्जरी के बारे में बोलो तो उसको क्या होगा, उसको पहले टेंशन आएगा, ठीक है. सर्जरी करना है तो क्यों करना है, किसके लिए करना है, उसको बहुत सारा क्वेश्चंस होगा हमें पूछने के लिए. उसका इमोशनल स्टेटस पूरा चेंज हो जाएगा. देखिए पेशेंट रोने स्टार्ट करेंगे, ठीक है. सर्जरी करने का ज़रूरत क्या है, सर्जरी करने के बाद पेन आएगा ना, तो वो हम कैसे कंट्रोल करेंगे, वो सब बहुत सारा क्वेश्चंस पेशेंट से आएगा, ठीक है. तो पेशेंट का इमोशनल स्टेटस कैसे है, ठीक है, और कोपिंग स्ट्रैटेजीज कैसे है, पेशेंट हमारे साथ कैसे एडजस्ट करते हैं, नहीं तो इस सिचुएशन के साथ पेशेंट का एडजस्टमेंट कैसे है. देन वी नीड टू सी दी सपोर्टिंग सिस्टम, ठीक है. सपोर्टिंग सिस्टम मतलब क्या है, पेशेंट की फैमिली उसके साथ नहीं तो हमारे साथ कैसे सपोर्ट करते हैं, ठीक है. देन वी नीड टू सी वेदर द पेशेंट कैन अंडरस्टैंड द, इफ वी एक्सप्लेन, हम लोग सर्जरी के प्रोसीजर के बारे में नहीं तो पोस्ट प्री मेडिकेशंस के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं तो पेशेंट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है. और अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कैसे एक्सप्लेन करना, ठीक है. दीज आर द थिंग्स वी नीड टू असेस इन द psychological needs, and in the cultural needs we will assess the language interpretation. मतलब क्या है, हम जो लैंग्वेज में बात करते वो लैंग्वेज पेशेंट को अंडरस्टैंडेबल है, नहीं तो हम क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को जो लैंग्वेज में अंडरस्टैंडेबल है सो वो लैंग्वेज में कोई भी इंटरप्रेटर को, ट्रांसलेटर को हम देखना है, ठीक है. सो दीज आर द प्री ऑपरेटिव असेसमेंट वी आर डूइंग. सो व्हाट आर द प्री ऑपरेटिव असेसमेंट वी आर गोइंग टू डू. First one is review of pre-operative laboratory and diagnostic studies, review of client's health history, physical, psychological and cultural needs का assessment. We are moving to the second point, informed consent. The patient's or guardian's informed consent for the surgery is a vital portion of the pre-operative phase, ठीक है. This is the main thing we need to do in the pre-operative phase, ठीक है. जो भी हम लोग करते हैं अगर पेशेंट का कंसेंट नहीं है तो हमें सर्जरी प्रोसीड करने का परमिशन नहीं है, ठीक है. सो इनफॉर्म कंसेंट लेने के लिए क्या क्या पॉइंट हम लोग मन में रखना है. सो बिफोर द सर्जरी इटसेल्फ द पेशेंट नीड टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द सर्जिकल प्रोसीजर, ठीक है. जो सर्जरी करने के पहले हम क्या करना है, पेशेंट को सब कुछ एक्सप्लेन करना है, ठीक है. कौन सा प्रोसीजर करने वाले हैं, ठीक है, कब करने वाले हैं, कितना टाइम के लिए होगा, ठीक है. और ये प्रोसीजर के बाद ये सारा कॉम्प्लिकेशंस आने का चांसेस है, ठीक है. तो ये सब एक्सप्लेन करके हम क्या करना है, पेशेंट का और पेशेंट का फैमिली रिलेटिव्स का, सर्जन का सब साइन हम लोग देने हैं, स्पेशली पेशेंट्स का इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ठीक है. तो उसका साइन हमको चाहिए, ठीक है. देन जो भी प्रोसीजर करने के लिए हम लोग पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं, ठीक है. तो सभी प्रोसीजर के पहले भी हम लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेते हैं. और अभी जो भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स करते हैं, इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट का इन्फॉर्म्ड कंसेंट और पेशेंट का कंसेंट लेते हैं, ठीक है. सभी पेशेंट्स ऐसे नहीं होगा. अगर हम लोग देखा है फिजिकल नीड्स ऑफ द पेशेंट में हम लोग क्या देखा है, पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देते हैं, ठीक है. अगर द पेशेंट इज अनकॉन्शियस, ठीक है, और द पेशेंट इज कंफ्यूज्ड, देन व्हाट वी नीड टू डू, वी विल गो फॉर द कंसेंट फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स, ठीक है. हम किसका कंसेंट लेना है, क्लोज फैमिली मेंबर का, और ये पेशेंट का क्योंकि गार्डियन है तो उसका कंसेंट हमको चाहिए, ठीक है. जैसे इफ द पेशेंट इज यंगर देन 18 years ऑफ एज, माइनर है तो भी किसका परमिशन लेना है, नहीं तो किसका कंसेंट चाहिए हमें, पेशेंट का पेरेंट का और गार्डियन का कंसेंट चाहिए. देन नेक्स्ट पॉइंट इज इन केस ऑफ इमरजेंसी व्हाट वी विल, ठीक है. इमरजेंसी मतलब क्या है, कोई भी रोड एक्सीडेंट का कोई केस आया है तो ठीक है, तो सर्जन को इमरजेंसी सर्जरी करना है. तो इन दैट केस व्हाट वी विल डू, द सर्जन कैन
कंटिन्यू विथ द प्रोसीजर ऑफ सर्जरी, सर्जन को सर्जरी स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी बाहर है, जैसे हमारा जैसे नर्सेस जो भी बाहर है, जो ड्यूटी में है, वो क्या करना है, उसका मैक्सिमम ट्राई करना है किसी का कंसल्ट लेने के लिए, पेशेंट का फैमिली मेम्बर्स का, नहीं तो पुलिस डिपार्टमेंट का कोई किसी का कंसल्ट लेने के लिए हम मैक्सिमम ट्राई करना है, ठीक है। देन ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन पॉलिसी टू टेक एन इन्फॉर्म्ड कंसल्ट, ठीक है। Each state and each institution has its own policies and legislations and laws to get a consent from a patient before any procedure, ठीक है। उसका मतलब क्या है, सभी स्टेट को, ठीक है, और सभी इंस्टीट्यूशन को उसका लॉस एंड लेजिस्लेशंस होगा और उसका पॉलिसीज होगा, ठीक है। तो ये सभी पॉलिसीज हम नर्सेस को भी पता होना चाहिए, तो भी हमको क्या कर सकते हैं, उसके हिसाब से कंसल्ट ले सकते हैं। अगर इमरजेंसी केस में क्या करना है, ठीक है, माइनर है तो क्या करना है, पेशेंट को पेशेंट कॉन्शियस नहीं है तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियस है, नहीं तो कंफ्यूज है तो हमें क्या करना है, ठीक है। ईच स्टेट का और ईच इंस्टीट्यूशन का लॉस एंड लेजिस्लेशन हमें पता होना चाहिए। देन द नर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट all necessary parties have been signed in the consent, ठीक है। सर्जरी के पहले पेशेंट का फैमिली मेम्बर्स है तो उसका, सर्जन का, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का, सबका साइन कंसेंट फॉर्म है, ठीक है। वो देखने का काम किसका है, स्टाफ नर्स का है, ठीक है। सो टुडे वी विल एंड द सेशन बाय दिस एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेक्शन बाय नेक्स्ट 3 पॉइंट्स। सो आज हम लोग क्या क्या देखा है, वी स्टार्ट विथ अ न्यू यूनिट दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट अंडरगोइंग सर्जरी, ठीक है। उसमें हम क्या देखा है, फर्स्ट वन इज पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग। पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग का मीनिंग क्या है, ठीक है, उसमें 3 फेसेस आता है, ठीक है, प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव। एंड देन वी हैड मूव्ड ऑन टू द प्री ऑपरेटिव फेज, ठीक है। उसमें हम लोग उसका डेफिनेशन क्या है वो देखा था, ठीक है। And we are seeing the roles and responsibilities of a nurse in a pre-operative phase. उसमें हम लोग 2 points explain किया है, pre-operative assessment and obtaining informed consent. Hope everyone understood the topic. The next section में हम लोग बाकी सब continue करेंगे. Thank you.